Good morning, students. Today I am going to ask you a few questions. The student who knows the answer will message me on chat box, or you can unmute yourself and answer. Now tell me, students, if a boy Mohan wants to open a shop, what Mohan needs to open a shop? Unmute yourself and answer. Mohan needed a money to open a shop. Yes, very good, Nikita. Now mute yourself. Mohan borrow or needs money to open a shop. Mohan will borrow the money from where? Students, unmute yourself and answer. Sir, Mohan will borrow the money from his friend, relative, or from bank. Very good. Now mute yourself. Mohan will borrow the money from friend, relatives and bank. Suppose Mohan takes 5,000 rupees and returns 6,000. Why he returned 1,000 rupees extra? Sir, Okay. because So students, today we will study about simple interest. Suppose if Abhishek and Akash are two friends, Abhishek has 10,000 rupees and Akash needs some money and he has no money, then from where he borrows the money? Unmute yourself and answer. sir, he will. Sir, may I? Yes, you can tell. Sir, he can borrow money from the bank Okay. Or or from their relatives or colleagues. yes, now mute yourself. Akash can borrow money from bank or he can borrow money from his friend Akash who has 10,000 rupees. Suppose Akash borrows 5,000 rupees from Abhishek and Akash returns 6,000 rupees after some time, then how much did he give extra to Abhishek? Unmute yourself and answer. Sir, he gave extra 1,000 rupees to the Abhishek. How did you find it? Sir, by subtracting the money which he borrowed and what the money he is going to be returned to Akash. What money he returned? Sir, he returned 6,000 rupees, Okay. but he borrowed 5,000 rupees. Yes, very good. Akash borrows 5,000 rupees and returns 6,000 rupees and he gave 1,000 rupees extra. And these 1,000 rupees is called the interest gave by Akash to Abhishek. Now we will deeply study about simple interest. Definition. Simple interest is a fee paid by a borrower of assessed to the owner as a form of compensation for the use of the assets. It is most commonly the price paid for the use of borrowed money or money earned by deposited funds. When money is borrowed, interest is typically paid to the lender as a percentage of the principal, the amount owed to the lender. इंटरेस्ट वो पैसा जो एक बोरो जो मतलब पैसा ले रहा है, जो वो अपना क्या कहते हैं किसी को भी देता है. सपोज़ किसी ने अपना कुछ भी उधार लिया, उसको कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अपनी शॉप खोलनी है, कुछ भी उसको मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई, उसने कहीं से भी अगर वो पैसे लिए, सपोज़ बैंक से लिए, उसने अपने दोस्त से लिए या फिर किसी भी जगह से लिए, तब वो जो बैंक है या उसको दोस्त है वो उस पैसे पर कुछ ना कुछ उस पर इंटरेस्ट लगाएगा. मतलब उस
कुछ पार्टिकुलर टाइम के लिए, सपोज उसने आपने उससे 1 साल के लिए लिया या फिर 6 महीने के लिए लिया, वो आपसे क्वार्टरली या मंथली या हाफ ईयरली या पर ईयरली आप पर क्या कहते हैं इंटरेस्ट लगाएगा उस मनी पर। अब वो इंटरेस्ट कितना होगा वो डिपेंड करता है कि वह उस मनी पर कितना इंटरेस्ट से, कितना रेट से इंटरेस्ट दे रहा है। अगर आपका बहुत अच्छा दोस्त होगा तो कॉमन सी बात है वो आपको कम रेट पे इंटरेस्ट देगा। अगर आपकी बैंक है तो हर बैंक का अपना एक फिक्स रेट होता है। और सपोज़ आपका अगर वो कोई और मतलब कहीं प्राइवेट सेक्टर से लेते हैं तो वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं हम लोग से। तो यही चीज़ मैटर करती है आपके सिंपल इंटरेस्ट में। It is the most commonly the price paid for the use of borrow money or money earned by deposit funds। ये एक तरह की बोरो मनी होती है या फिर जो डिपॉजिट फंड से मनी अर्न की जाती है या वो मनी होती है। When money is borrowed, interest is typically paid to the lender as a percentage of the principal the amount owed to the lender। जब भी कोई मनी बोरो की जाती है तो वह जो इंटरेस्ट है वो सीधा क्या कहते हैं हमारे लेंडर को पे किया जाता है, जो कि प्रिंसिपल मतलब जो हमने उससे अमाउंट लिया है उसका कुछ परसेंटेज होता है। तो उसको क्या कहते हैं वो जो टोटल उसने जो पहले अमाउंट लिया था वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस साथ में जो उसको भी परसेंटेज एक्स्ट्रा देना है उस प्रिंसिपल का वो भी उसको देना पड़ेगा। The percentage of the principal that is paid as a fee over a certain period of time, typically 1 month or year, is called interest rate। जो परसेंटेज होती है प्रिंसिपल पर जो लगती है हमारी, वो क्या कहते हैं उसको सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए या फिर हम 1 मंथ या फिर 1 ईयर के लिए उसको उसका इंटरेस्ट रेट कहते हैं। A bank deposit will earn interest because the bank is paying for the use of deposit funds। जो बैंक है वो इंटरेस्ट लेता है क्योंकि उसको क्या कहते हैं पे करने पड़ते हैं जो डिपॉजिट फंड है, ठीक है, जो यूज़ करना पड़ता है, जो फंड है उसको वो यूज़ करता है ताकि वो पे कर सके। Assets that are sometimes lent with interest include money, share, consumer good through hire purchase, major assets such as aircraft and even entire factories in finance lease arrangement। हमारे क्या कहते हैं कहीं मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान लेता है, कई बार कई कंपनीज़ लेती हैं, कई बार क्या कहते हैं मेजर प्रोजेक्ट होते हैं तब भी हम इंटरेस्ट लेते हैं। सपोज़ हम लोग इवन क्या कहते हैं कोई कंट्री किसी बैंक से लेती है, सपोज़ इंडिया हमारा वर्ल्ड बैंक से कभी कभी लोन लेती है या फिर कभी कभी हमारा जो इंडिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेती है, तो ये ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान ले, ये मेजर बॉडी भी ले सकती है और माइनर बॉडी भी ले सकती है। अब डिपेंड करता है कि उसको इंटरेस्ट या फिर रेट क्या मिल रहा है। जितना कम रेट मिलेगा उस जो हमारा सामने वाला इंसान है जो बोरो कर रहा है उसके लिए उतना फ़ायदा होगा, वो उतना आसानी से उसको चुका पाएगा। The interest is calculated upon the value of the assets in the same manner upon money। जो इंटरेस्ट है वो क्या कहते हैं उसी तरह से क्या कहते हैं कैलकुलेट किया जाता है जैसे कि उसकी मनी होती है कैलकुलेट। अब नाउ वी विल स्टडी अबाउट सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला। सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला का जो होता है वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100। तो कह सकते हैं हम कि प्रिंसिपल मतलब जो हमने अमाउंट लिया है वो होता है हमारा प्रिंसिपल, और जो रेट मतलब जिस रेट पे जिस परसेंटेज जो हमारा जितना भी हमने बोरो किया है मनी उस पे जो परसेंटेज लग रही है वो हमारा होता है रेट। और आपका टाइम पीरियड मतलब जिस टाइम पीरियड के लिए हमने वो लिया है वो पैसा वो होता है हमारा उसका टाइम पीरियड। तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और 100 से डिवाइड कर दें तब हमारे पास क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है जो हमने उस मनी पर लिया है। अब अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ द इंटरेस्ट एंड T इज योर टाइम पीरियड अपॉन 100। नाउ फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट।
अब कुछ चीज़ें बता दूं, मैंने आपको जैसे बता दें कि प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल मीन्स दी ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्टेड और बोरोड। जो हमने ओरिजिनल अमाउंट लिया है वो होता है प्रिंसिपल। रेट क्या होता है, जो हमने जो प्रिंसिपल पे रेट जो लग रहा है, जो परसेंटेज लग रही है वो हमारा पर ईयरली या फिर पर हाफ ईयरली वो हमारा उसका रेट होता है। और अमाउंट क्या होता है, मैं आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमाउंट और प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस होता है। देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एंड प्रिंसिपल। अमाउंट इज टोटल मनी which you have to give after the time period। मतलब जो आप अमाउंट टोटल दे रहे हो इंक्लूडिंग योर सिंपल इंटरेस्ट प्लस योर प्रिंसिपल, वो आपका टोटल अमाउंट हो रहा है। तो अमाउंट का अगर हम फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, और प्लस जो आपने उससे बोरो किया था मनी, वो आपका होता है टोटल अमाउंट। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपसे अगर अमाउंट पूछा गया है तो आप प्रिंसिपल मत निकालिएगा, उसको आपको उसमें एसआई भी प्लस करना पड़ेगा। नाउ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट वी विल डू अ क्वेश्चन। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम 2500 ऑन रेट 5% फॉर 4 years। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। जहाँ पर आपका सबसे पहले ये बताइए कि मैं आपको विजिबल हूँ और मेरी स्क्रीन दिख रही है? कोई अपना अनम्यूट करके बताए। Yes, sir. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द प्रिंसिपल इन द गिवन क्वेश्चन। Sir, 2500. यस, वेरी गुड। नाउ म्यूट योरसेल्फ। व्हाट इज द रेट of the given question? The rate is 5%. Yes, very good. Now what is your time interval for the given question? Unmute yourself and answer. What is the time? So time is 4 years. Yes, very good. Now mute yourself. Now we have given, actually हमको सब कुछ गिवन है इसमें। प्रिंसिपल भी गिवन 2500, 5% इंटरेस्ट गिवन है हमको, और हमारा 4 years टाइम गिवन है। नाउ वी विल कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग इट्स फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले हम दो क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट रेट परसेंट ऑन द सम ऑफ, ये दोनों क्वेश्चन हैं, दोनों से आपको सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा, दूसरा आपको उसका कैसे रेट कैलकुलेट करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या होता है कि कई बार जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन आपका घुमा के दे देता है कि सपोज आपने तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद किया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। अगर लेकिन अब या आपसे वो पूछ ले कि रेट निकालो, आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको दोनों तरह के क्वेश्चन कराऊंगा सो दैट आप एग्जाम में जाकर कर सको, अटेम्प्ट कर सको। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको कैलकुलेट करना है रेट, जिसमें आपका सम है वो 5000 गिवन है, मतलब आपका प्रिंसिपल 5000 गिवन है, जो आपका टाइम है वो 4 years है, और जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो 1000 है। लेट्स सी हाउ वी विल कैलकुलेट इट। नाउ दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। एसआई हमको फाइंड करना था, तो हम सबको पता है कि जो एसआई का फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। जो यहाँ पर आपको पता था कि प्रिंसिपल 2500 था, जाफरुन ने बताया कि प्रिंसिपल 2500 था, आपका रेट 5% था, और आपका जो टाइम था वो 4 था। इसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे हम तो आपका जो 2 जीरो है नीचे के 100 के, वो 2500 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 25 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125, और 125 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आएगा 500। देन सो हमारे पास एसआई क्या आ गया, 500 रुपीज़। समझ में आ रहा है? अनम्यूट करें और बताएं मुझे। Yes, sir. ओके, नाउ म्यूट योरसेल्फ। नाउ सेकंड क्वेश्चन में सेम हम फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, लेकिन हमको यहाँ पर SI गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, आपको टाइम गिवन है, बट आपको क्या करना है,
आर कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमको थोड़ा सा अपने फॉर्मूले को तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा, मतलब थोड़ा हमको उसको अलग करना पड़ेगा। सपोज उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि जो सबसे पहले जो आपका 100 डिवाइड में है उसको हम जाकर उधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे, तो SI के साथ जो है 100 जो हो जाएगा वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और आपको रेट निकालना है तो रेट में के साथ आपका प्रिंसिपल और टाइम जो है वो परसेंटेज में होता है। जब वो उस तरफ जाते हैं कोई चीज़ और इस तरफ अगर वो मल्टीप्लाई में है तो वो इज इक्वल टू के साइन के अपोजिट जाकर वो डिवाइड में हो जाती है, तो हमारा जो प्रिंसिपल और टाइम है वो डिवाइड में हो जाएगा। देखते हैं फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या मिलता है। तो हमारे पास फॉर्मूला ये मिल जाएगा, मैंने जैसे कि आपको बताया कि 100 जाके आपका SI से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो आपका P इंटू आर है वो उधर मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके वो डिवाइड में हो जाएगा। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यूज़। SI हमको 1000 गिवन था और हमारे पास जो रेट था वो 100 था और जो टाइम था हमारे पास वो गिवन था वो आपका क्या कहते हैं 5000 था और वो आपका जो रेट था वो 4% था। इसको अगर हम करते हैं तो आपका 5000 से जो थ्री आपके जीरो हैं वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो आपका फिर 5 है 5 आपका 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा 20 बार में, तो आपका हमारे पास आंसर आएगा 25 ईयर्स। जो T आपका आ रहा है वो 25 हम ईयर्स में लेंगे हमेशा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ क्या कहते हैं ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट इज दैट अमाउंट विच ओनली द प्रिंसिपल इन्वेस्ट अर्न्स इन्वेस्ट, वो सिर्फ एक इन्वेस्ट होता है जो प्रिंसिपल पर अर्न किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर इट और you can message me on chat box. Now tell me what is simple interest? Unmute yourself and answer. Kanchan, unmute yourself and answer. Nikita, unmute yourself and answer. What is simple interest? Yes, very good Samraghi. The amount we pay after a certain year including interest is called simple interest. Very good Samraghi. Now mute yourself. Simple interest is that amount which only the principal invest. Now what is the formula to calculate simple interest? Nikita, unmute yourself and answer. Sir, can I answer? Yes, Abhishek, you can tell. Sir, the formula is simple. It's PRT upon 100. Very good. Now mute yourself. The formula for simple interest is P into R into T upon 100. Now my next question is, if you have amount 5000 and the rate of the on the principal is 10% and the time is 5%, then what will be the interest? Principal is 5000, rate is 10% and time is 5, then what will be your interest, simple interest? Principal is your, okay, yes you can. 2500. Okay, let's see. 5000 is your principal, rate is 10% and time is your 5, then your SI will be 2500. Very good. Now mute yourself. Please write down these questions in your notebook. Now it's time for your homework. Your first question is, SI आपका 200 है, रेट आपका 5% है, T आपका 4 years है, आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एस आई आपका 400 है, रेट आपका 4% है, प्रिंसिपल आपका 8000 है. यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम. ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चंस. थैंक यू क्लास. मैम डन.